کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جگہ جگہ سٹال لگ چکے ہیں اور سبز ہلالی پرچموں کی بھی بہار ہے۔ آپ جہاں پہ دیکھیں گے آپ کو سٹالز نظر آئیں گے، بیجز، جھنڈیاں، جھنڈے، اور لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بہت دیدنی ہے۔ لیکن ہمیں جشن آزادی منانے کے لیے بھی کچھ اصول، کچھ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ پروگرام کے ہمارے چوتھے سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک مایہ ناز ماہر تعلیم پروفیسر سائمہ اقبال صاحبہ۔ پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تھینک یو۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جشن آزادی آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام ہو اور ان کا جذبہ دیدنی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی سدرا، دیکھیں ہماری ذمہ داری سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد دوں گی جشن آزادی کی، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل۔ اور کیونکہ ہم آزاد ہیں، ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، ہم آزادی سے کہیں آ جا سکتے ہیں، اور جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی وہ ہمیں نہیں دینی پڑ رہی اس آزادی کے لیے۔ اور اگر جہاں تک ہماری ذمہ داری کی بات ہے تو میں یہ ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو ذمہ دار بننا ہے، ہمیں خود بننا ہے۔ ہم موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ گورنمنٹ کو ایسے کرنا چاہیے، یہ گورنمنٹ کو ویسے کرنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں نہیں، انڈیویژول لیول پہ، انفرادی طور پہ ہر بندہ جب اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا۔ دیکھیں اب گلی میں کوڑا گورنمنٹ تو نہیں آ کے پھینکتی، بالکل ٹھیک ہے، اور یا پھر ہم اور کوئی برائی کر رہے ہیں، جیسے اپنے ملک کو گندا کرنے کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ملک کو لے کے چلیں۔ ہم نے اپنے ملک کو صاف بھی رکھنا ہے، ہم نے اچھا شہری بھی بننا ہے۔ اچھا شہری ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھا شہری کی ڈیفینیشن آپ بتائیں کہ آپ ایک اچھا شہری کس کو کنسیڈر کرتی ہیں؟ دیکھیں میں تو اچھا شہری اس کو کہتی ہوں کہ جو ہر رول کو فالو کرتا ہے، قوانین کو نہیں توڑتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ایک اچھا انسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شہری، دیکھیں اب دیکھیں ہم اگر ہم اچھا شہری بن جائیں تو گورنمنٹ کو یا کسی قوانین نافذ کرنے والے ادارے کو وہ سب نہ کرنا پڑے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہم سگنلز پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا یلو، ہم بھاگ کے نکل جاتے ہیں، جلدی نکل جائے، وہ سگنل بند ہو جائے، سگنل بند ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یا ریڈ ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، وہاں سے بھی ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہم ذمہ دار شہری کیسے بن سکتے ہیں، ہم ایماندار ہو کے بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اپنے آپ سے ایماندار ہو جائیں، اچھا، اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا پوری ایمانداری سے نبھائیں۔ لیکن وہ تو ہم نہیں کر سکتے، نہیں کرتے نا، کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں کرتے، ہم بھاگتے ہیں اپنی ہی ذمہ داریوں سے، ہم بھاگ رہے ہیں، ہم ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ ہم جیسے دفاتر میں ہمارا 9 سے 4 کا ٹائم ہے یا 8 سے 4 کا، جو بھی ہماری فکس ٹائمنگ ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم بار بار ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم رہ گیا، تاکہ ہم جلدی سے یہاں سے نکلیں۔ یار ہم آفس میں کیوں بیٹھے ہوئے، ٹائم ہی نہیں گزر رہا، آفس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم ڈیورنگ ورکنگ آورز ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اچھے شہری کی اپنی ڈیفینیشن بتائیے نا، تو کیا کہیں کہا کہ بتائیں، اور ذمہ داری تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سب سے پہلے اپنے آپ سے ایماندار ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنا کام پوری ایمانداری سے کریں۔ کسی کو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ اپنا کام پوری ایمانداری سے کریں گے اور اتنا اچھا کریں گے، دل لگا کے محنت سے کریں گے، تو پھر آپ کو کوئی کہے گا ہی نہیں کہ جو ہے وہ آپ نے کام نہیں کیا۔ کسی کو کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، نہ کسی کو ڈانٹنے کی نوبت آئے گی۔ تو میرے نزدیک تو اچھا شہری یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی دیکھیں، یہ تو ہم دفاتر کی بات کر رہے ہیں نا، ذاتی زندگی میں ہم ہر انڈیویجول کی بات کریں تو ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ملاوٹ کے بغیر تو ہم باز ہی نہیں آتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ادھوری ہے جب تک اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ لگتا تو ہمیں ایسا ہے نا کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا، لیکن وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ کا فائدہ تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ سے ایماندار ہونا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ ملاوٹ کو روکے، گورنمنٹ ایسا کرے، گورنمنٹ ویسا کرے، نہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے نا، ہمیں ملاوٹ کو روکنا ہے، ہمیں 2 نمبری کو روکنا ہے۔ فروٹس لینے جائیں، فروٹ والا کیا کرتا ہے، نیچے ایسے الٹا کر کے رکھا ہوتا ہے، خراب اچھے والا جو لال والا پورشن ہوتا ہے وہ اوپر رکھا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں آپ لال سیب ہے، بالکل ایسے ہی، اور یا پھر اوپر سٹیکر لگا ہوتا ہے
हाँ ठीक है, ज़रा सी आपकी नज़र इधर ओझल हुई, पूरे के पूरे ख़राब। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, आपने भी डेफिनेटली किया होगा। अक्सर यही होता है कि जब हम ज़रा सी नज़र ओझल हो जाए या उन पे छोड़ दें कि आप फ्रूट डाल दें, तो घर आके देखें तो पूरे का पूरा फ्रूट ख़राब निकलता है, कोई एक दाना गलती से ठीक निकल सकता है। हाँ। ठीक है, इसी तरह से गोश्त वाले के पास चले जाए, वो भी ऐसे करेगा। ठीक है, उसकी कोशिश होती है सारी हड्डियाँ एक ही शॉपर में चली जाएं, सारी हड्डियाँ एक ही इस तरफ चली जाएं। ठीक है, और फिर बाकी मसालों में देखें किस हद तक, असल में देखें हम अपनों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपनों की ज़िंदगी के साथ है ना। ठीक है, हम देखें जो हम ये सारे लोग हैं ये हमारे अपने हैं, ये मुल्क हमारा अपना है, तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी है कि हमें मिलावट नहीं करनी। लेकिन हम अपना तो मानते नहीं है, हमें तनकीद और तस्हीक से टाइम मिले तो हम किसी चीज़ को अपना माने। हाँ बिल्कुल। अभी आप ये देखें कि साने सवात हमारे सामने है, बिल्कुल ऐसे उसमें हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोताही है, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने वैसा नहीं किया। आपको अलर्ट किया गया? बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट किया गया। आप जैसे उसकी बात कर रही हैं सानिया सवात की, तो उसमें देखें वहाँ पे मैं उनके इंटरव्यूज़ सुन रही थी, तो जो डॉक्टर बच के हैं वो ये कहते हैं कि हमें वहाँ के लोकल जो थे उन्होंने कहा था आप लोग निकल जाएं, सिचुएशन ज़ाहिर है उनको तो पता होता है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको सिचुएशन का पता होता है कि अब क्या कंडीशन होगी वेदर की। ठीक है, उन्होंने जब उनको मना किया तो उन्होंने कहा अच्छा हम निकलते हैं। जो लोग जिन्होंने बात मान ली वो बच गए, जिन्होंने नहीं विद इन फ्यू सेकेंड्स वो गाड़ी के ड्राइवर के मुताबिक जो है जब हम फिर उसके बाद 5-7 मिनट जब उन्होंने बात की, 5-7 मिनट के बाद निकालने लगे तो गाड़ी के आगे बड़ा सा पत्थर आ गया एकदम से। ठीक है, तो देखें एक छोटी सी इंसानी गलती, अपनी गलती, हम उसको जो है वो ठीक है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हम उसको भी तो चैलेंज करते हैं ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जश्न आज़ादी के हवाले से क्या क्या तैयारियां की हैं अभी तक? जश्न आज़ादी के हवाले से सच्ची बताऊं अभी तो कोई तैयारी नहीं की। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली तैयारी के बच्चों को पता है, बेटा मेरा उसको होता है कि मैंने वो ड्रेस पहनना है, वो मैंने पहले ही लेके रख लिया है, और मैंने अपने लिए अपनी बेटी के लिए ग्रीन शर्ट लेके रख ली हुई है पहले से। और फिर इसी तरह क्योंकि 14 अगस्त के फंक्शंस आ जाते हैं तो वो फिर पता नहीं होता कि कब जो है वो आपने जाना पड़ जाता है, तो फिर झंडियाँ बच्चों की ख्वाहिश होती है वो ज़रूर लगाएं। तो झंडियों के बगैर तो 14 अगस्त वैसे ही अधूरी होती है, वैसे ही अधूरी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो बाजे बजाना, हाँ ठीक है, ये बाजे आपको सोने नहीं देते, आपको आराम नहीं आने देते। ये अभी 14 अगस्त से पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे, आप देखेंगे कि 5-6 दिन पहले से ही लोगों के हाथों में आपको बाजे नजर आएंगे, बाजे आएंगे। ठीक है, तो ये देखे ना, मैं ये अब ये देखे बाजे बनाने वाले पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चों को हम सिखा नहीं सकते, बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो एक बच्चे को देखता है, दूसरा दूसरे को, तीसरा फिर दूसरा तीसरा ऐसे देखता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें बाजे नहीं बचाने, क्योंकि लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो हो सकता है कोई बीमार हो। समटाइम्स हम हॉस्पिटल्स के पास से भी गुजरते हैं, जैसे 14 अगस्त वाले दिन या 13 अगस्त की रात को शाम को पूरी सड़कों पे एक रश सा लगा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे नज़दीक ना ठीक है ये एक जू की आज़ादी है, हमें मनाना भी चाहिए ये दिन और जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए, लेकिन ये मेरे नज़दीक आज़ादी का बड़ा अलग सा मीनिंग है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दी है, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपनों की सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अच्छा शहरी ज़रूर बने। अच्छा, हम अपने मुल्क की तरक्की में किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, अपने मुल्क की तरक्की में जैसे मैंने आपको बताया, हर इंसान उसका अपना अपना रोल है। ठीक है, वो अपना रोल ये ना कहे कि फ़लाँ ने ये काम करना था, नहीं, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके हिस्से का जो काम है वो आपने करना है। ठीक है, और उसको पूरी ईमानदारी से, जैसे सैनिटरी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका जो काम है उन्होंने उसको करना है। ठीक है, हम एज अ शहरी हमें वो जो एक गंद है अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखना, देखिए ये छोटे छोटे से है ना, छोटे छोटे से काम है, ये मिल के हम अपनी सड़कों को साफ़ रखें। ठीक है, फिर उसके अलावा हर कोई अपनी जो ज़िम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, उसके जो फ़र्ज़ है उसको बेहतरीन तरीके से निभाए। और माएँ भी, टीचर्स भी बच्चों को ये चीज़ बताएं कि बेटे ये बाजे बजाने से या झंडियाँ लगाने से, ठीक है वो एक खुशी का इजहार ज़रूर होता है, लेकिन आप ज़िम्मेदार शहरी बने, करप्शन ना करें, बदउनवानी ना करें,
बेईमानी ना करें, ठीक है, किसी का बुरा ना करें। तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें बेसिक हैं जिनको लेके हम आगे चल सकते हैं। फिर इसके अलावा हम अगर हम बात करें तो ऐसी तालीम हासिल करें जो मुल्क की तरक्की के लिए कामयाब शहरी बनाने में हमारी मददगार साबित हो, हमें शऊर दे, ठीक है। और जैसे और अब ये देखिए कि जैसे आईटी का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन चली गई है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, लोगों को भी, गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस दे, ठीक है, अवेयरनेस दे। अब ये देखें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का कितना मिसयूज़ होता है, हम गाली गलौज करते हैं, हम एक दूसरे को गलत कहते हैं, तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसका मस्बत जो है इस्तेमाल सीखें, ठीक है। तो हमें गाली गलौज के कल्चर को नहीं प्रमोट करना, ठीक है। तो मुझे तो ये सारा कुछ लगता है कि हम अपनी तरक्की में, जो मुल्क की तरक्की है उसमें किरदार अदा करने के लिए अपने आप को स्किलफुल भी करें, अपनी स्किल्स में इजाफा भी करें, क्योंकि दुनिया यहाँ से भाग जाना एक सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, तो हमारा बहुत सारा टैलेंट। एक चीज़ जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि यहाँ पे या तो अगर आपको जॉब करनी है, आपको पैसा चाहिए, आपको रेफरेंस चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी जी। इसमें कितनी सदाकत है, क्या लगता है आपको कि आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं? सिद्रा, इसमें कहीं ना कहीं सदाकत मौजूद है। आप किसी भी दफ्तर में अपना जायज़ काम भी करवाने जाए ना, तो वो भी आपको जो है ना वो पैसे मांगेगा। और जॉब्स के हवाले से तो देखें, अभी जैसे मैं आ रही थी तो आपके ही चैनल का ड्राइवर जो है वो मुझे बता रहा था, बाजी मैं इंटरव्यू देने गया तो 2 सीटें थी। इसी तरह से कल मैं एक और माली से बात कर रही थी, वो भी ये बता रहा, कह रहा बाजी मैं फैसलाबाद 12,000 रुपया लगा के गया, पहले अप्लाई किया, फिर इंटरव्यू के लिए गया। जब उधर गया तो पता लगा इंटरव्यूज़ कैंसिल हो गए। और कैंसिल क्यों हुए हैं? जो 2 लोग उन्होंने रखने थे उनकी कोई तगड़ी सिफारिश थी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा नौजवान मायूस हो रहा है। हमें इस सिफारिशी कल्चर को, रिश्वत के कल्चर को ख़त्म करना चाहिए, टैलेंट को सामने लेके आना चाहिए। और एक जो मायूसी है ना हमारे नौजवान के अंदर, उसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसे हम ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं? हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, कोई भी सीट्स आती हैं उस पर सिफारिश कल्चर चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम मायूस ही होते हैं कि यार हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल, उसमें सिद्रा मैं ये कहूँगी कि देखिए मेरिट को प्रमोट किया जाए, मेरिट को प्रमोट किया जाए। और जितने भी बड़े ऊपर जो भी सिफारिश करते हैं, अगर देखें वो बंदा कॉम्पिटेंट है, पढ़ा लिखा है, उसके पास स्किल्स हैं, वो डेफिनेटली वो उसको पास कर लेगा, उस टेस्ट को, उस इंटरव्यू को ज़रूर पास कर लेगा। और अगर देखें इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान पीछे रह जाते हैं, और वो लोग जो कि मतलब मैंने खुद मेरिट की धज्जियाँ उड़ते हुए देखी हैं, वो लोग जैसे किसी एक सीट के लिए 6 लोग एलिजिबल हैं, पहले 5 लोगों को छोड़ के छठे बंदे को जो है वो ऊपर लेके आ जाया जाता है। वो जब वो ऊपर आता है तो जो पहले 5 हैं वो मायूस होते हुए उनको मैंने देखा। जैसे मैंने एक दफ़ा एक ख़ातून के हवाले से उनसे मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहीं प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई किया था, उनका मेरिट सबसे हाई था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो उससे उनसे नीचे थी, तीसरे चौथे 5वें नंबर पे या जो भी उनका नंबर था, उनकी तगड़ी सिफारिश थी, ठीक है। और वो जो हाईएस्ट मेरिट वाली खातून थी वो कॉम्पिटेंट भी, पर्सनली उनको जानती हूँ, कॉम्पिटेंट भी बहुत थी। कोई एक पैगाम जो आप हमारे प्रोग्राम के आखिर में देना चाहें? पैगाम इसमें ये है सिद्रा कि हम सबको मिलके इस मुल्क को संवारना है, हमें मायूसी को ख़त्म करना है, अपने नौजवान को हम उसकी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल करना हमें सीखना है, मस्बत अंदाज में सीखना है। और ये मुल्क हम सब का है और इसे हमने ईमानदारी से, दयानतदारी से और खुलूस से इसको चलाना है, तो ही ये आगे बढ़ेगा। वरना ये अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती या कोई अकेला इंसान नहीं चला सकता। तो हमें सबको मिलके जो जो हमारा किरदार है, जहाँ जहाँ है, हमें वो अदा करना है। और हमें लोगों को फैसिलिटेट करना है। अगर हम आपके दफातर में किसी को कोई काम है और उसका जेन्युइन काम है तो हमें फैसिलिटेट करना है और उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो तभी हम जो है वो जश्न आज़ादी का भी मज़ा है और मुल्क की तरक्की भी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साइमा इकबाल साहबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है और मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, एक नए सेगमेंट में और एक नई सुबह के साथ।